Hello students, this is experiment number 11 from the question number 4. Spot H which will come for 1 mark. Spot H which is already containing study of human brain. So this is a very simple spotting because here only one spot is given. There are no various types of the different parts. So here students, with the help of chart you can understand, or with the help of demo statue you can understand this is a human brain, and it is very easy to understand this human brain structure. So now this is the human brain structure. So this chart we're going to keep in the exam, but in the exam we're going to hide all the label. Here you can see there are various labels over there and various parts of the human brain. Now olfactory lobes, frontal lobe, central sulcus, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum, spinal cord and temporal lobe. So these are the various parts which I have given. Now here student listen carefully. यहाँ पे आपको ये सारे पार्ट्स जो दिए हैं उसका क्या लिखना है, फंक्शन लिखना है. एग्जाम में ये सारे पार्ट में से कोई भी एक फंक्शन लेबल के साथ या आपको लिखना है, जैसे कि सेंट्रल सल्कस तो उसका फंक्शन लिखना है, या फिर आपको याद आ रहा है पराइटल लोब तो पराइटल लोब लिखेंगे, तो पराइटल लोब लिखने के बाद उसके बारे में एक फंक्शन लिखेंगे. रिमेंबर वन थिंग, यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ डायग्राम. तो यहाँ पे आपको कोई भी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. नाउ मूविंग टू अवर एक्सपेरिमेंट, that is spot H, which is the study of structure of human brain. The human brain can be divided into 3 main parts. जैसे आपको पता ही है कि human brain जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. that is a forebrain, midbrain and hindbrain. So these are the 3 various parts of the human brain. तो इस 3 brain जो ये जो पार्ट जो है 3 पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स भी बहुत वेरियस डिपार्टमेंट में या कंपार्टमेंट में क्या हुआ है, डिवाइड हुए हैं. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द फोर ब्रेन. सो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ओल्फैक्टर लोब्स, सेरेब्रम एंड डायनसेफेलन. तो यहाँ पे जो फोर ब्रेन जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, ओल्फैक्टर लोब्स कंसिस्ट करता है, सेरेब्रम कंसिस्ट करता है एंड डायनसेफेलन कंसिस्ट करता है. देन मिड ब्रेन. Midbrain, it contains the cerebral aqueduct. The midbrain is also containing on its inferior surface 2 thick fibrous tract called cerebral penniless. तो यहाँ पे midbrain जो है ये सारी चीज़ें कंटेन करता है. hindbrain और hindbrain consist of the bone varoli, cerebellum and medulla oblongata. तो यहाँ पे हाइंड ब्रेन जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ द पोन्स वेरोलाई, सेरेबलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो हियर दीज आर द 3 पार्ट्स of the human brain structure, where the human brain is divided into this 3 part: forebrain, midbrain and hindbrain. Now here you can see, but students in the exam point of view, you will not going to write down about the hindbrain, hindbrain, forebrain or the midbrain. आपको क्या लिखना है, जो ये चार्ट में जो लेबल दिए हैं उनके बारे में और उनके ही फंक्शंस लिखने हैं. ओके, नाउ हियर सेंट्रल सल्कस which democrats frontal lobe from the parietal lobe. So here you can see there is a central sulcus जो लाइन है, जो फ्रंटल लोब और पराइटल लोब को क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को उसमें से 2 हिस्सों में बट गया है, ऐसे हमको दिखाई देगा. नाउ हियर द फंक्शन इज अ फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम. अभी सेरेब्रम देखेंगे और उसका फंक्शनल एरिया देखेंगे. नाउ द फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रम, द फ्रंटल लोब, पराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब. नाउ हियर यू कैन सी in the diagram there is a temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe. So these are the different functional area of the cerebrum. And downwards you can see the cerebellum.
and there is a cone like there is a structure which is a straight structure which is called as a spinal cord. Now here frontal lobes. Now this area, functional area which are performing the various functions. हमारा जो ब्रेन जो होता है और ये ब्रेन्स के जो एरियाज जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सिर्फ अकेला ब्रेन नहीं काम करता है, यहाँ पे पूरा जो इंस्ट्रक्शन देने का काम होता है, पूरा फंक्शनिंग का काम होता है. ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ब्रेन के जहाँ पे वो क्या करता है, फंक्शन करता है. अभी फ्रंटल लोब्स में आप देखेंगे दे हैव द मोटर एरिया विच इज कंट्रोल्स द वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज और द मूवमेंट ऑफ मसल्स. तो वॉलंटरी मूवमेंट जैसे रहता है वो कौन एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब्स. तो मसल्स का जो मूवमेंट्स होता है और मोटर एक्टिविटीज जो होता है वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज अ फ्रंटल लोब. सो यू कैन सी दिस इज आवर फ्रंटल लोब. ये जो एरिया जो है खास करके हमारे वॉलंटरी एक्टिविटी एंड मसल्स एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इज पैराइटल लोब्स. They are mainly for the somatic sensation of pain, pressure, temperature, taste. Now here you can see parietal lobe. So this is your parietal lobe of your brain, जो क्या करता है, sensation, pressure and somatic pain और जो टेस्ट जो होता है वो कौन करता है, पैराइटल लोब क्या करता है, कंटेन करता है. तो उसका फंक्शनिंग का डिपार्टमेंट क्या है, सोमैटिक पेन को कंट्रोल, पेन दिखाना, देन प्रेशर कंट्रोल करना, टेम्परेचर, ये सब चीजें कौन करता है, पैराइटल लोब. नाउ हियर टेम्पोरल वेस्ट, टेम्पोरल लोब्स. नाउ द टेम्पोरल लोब इट कंटेन्स द सेंटर्स फॉर स्मेल, olfactors, hearing, auditory, speech and emotions. Now here you can see temporal lobe. So this is your temporal lobe. So you can see the olfactory bulb is also there. So olfactory bulb is there which is useful for the smell, odor, right? So this odor which is the functioning area where we can exactly sense the smell, that is the olfactory bulb. And the temporal lobe में जो होता है, there is a what they have said, that is in the slide they have said that they containing hearing, speech and the emotion. So this temporal lobe which is containing hearing, speech and emotions. So here you can see this is the temporal lobe. Okay student. Now moving to next, that is the occipital lobes. They have the visual area mainly for the sense of vision. So occipital lobe which is containing the visual area. Visual area means eyesight. So it is containing our vision, eyesight vision. So occipital lobe which is helping us to controlling over our vision area, जहाँ पे अपना विजन मतलब आई साइट जो होता है वो वहाँ पे कंट्रोलिंग का काम कौन करता है, ऑसिपिटल लोब करता है स्टूडेंट. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन सेंटर फॉर द मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन. तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हर रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, वो मेन सेंटर है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का. इट प्रोवाइड्स द नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर बिलो द सेरेबेलम. यू कैन सी देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड. अभी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है स्टूडेंट, ये स्पाइनल कॉर्ड में आप देखेंगे दिस स्पाइनल कॉर्ड इज अ कनेक्शन सेंटर बोला जाता है उसको. मतलब अपना जो लोअर बॉडी पार्ट जो है पूरा का पूरा वो किससे कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से. और उससे बहुत सारे नर्व्स और वेन्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. तो जो भी एक्टिविटी होता है, एक्शन होता है, उसका जो बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट तुरंत हमारे ब्रेन को समझ में आता है और ब्रेन से आने वाले जो सिग्नल्स है वो हमारे बॉडी की तरफ जाते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट एज अ नर्वस कनेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो ये जो है ये एक्यूरेट सेंटर ऑफ क्या है, नर्वस सिस्टम है, जहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन दिखाई देता है बॉडी की तरफ से ब्रेन की तरफ, ब्रेन की तरफ से बॉडी की तरफ. सो देयर इज अ ह्यूज एक्टिविटी विच इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. So now this is our spinal cord. Here student,
we have learned about the central sulcus and the functional area of the cerebrum, that is a frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe, and we have learned about the spinal cord. Okay. Now here students, cerebellum is the second large part of the brain and it consists of the two lateral hemisphere and the central vermis. It is composed of the white matter with a thin layer of a grey matter, the cortex. The white matter intermixes with the grey matter and shows a tree-like a pattern called as arbor vitae. Now, cerebrum students, cerebellum जो है वो क्या करता है, बहुत सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का और वो दो लैटरल हेमिस्फीयर एंड द सेंट्रल वर्मिस में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है. और ये जो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है, आउटर जो स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज इन द वाइट मैटर विद अ थिन लेयर एंड द ग्रे मैटर. ये इसका मिक्सचर होता है. नाउ हियर देयर इज अ फंक्शन ऑफ द सेरेबेलम, दैट इज इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, पोस्चर, balancing, voluntary movement and maintenance of the muscle tones. So this is the work of, this is the actual function of the cerebellum. यहाँ पे cerebellum बॉडी के लिए ये काम करता है. So this is the brain, which is the brain part, जहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में. So this is cerebellum जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है. So second most largest part है brain का, so that is containing the various functions. So those functions are the body posturing, balancing, and voluntary movements of the body and the maintenance of the muscle tone. So you can understand with the help of diagram. So this is very easy to understand the structure of human brain. एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो जितने लेबल दिए हैं ब्रेन के लिए वही लेबल के फंक्शंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे ब्रेन का एक चार्ट रखा जाएगा और आपको वहाँ पे फंक्शंस लिखने हैं, जहाँ जो ये पूरे पार्ट्स दिए हैं उसके फंक्शंस आपको लिखने हैं. जैसे कि सेंट्रल सल्कस दिया है, पैराइटल लोब दिया है, ऐसे 3 एटलीस्ट आपको नाम दे के क्या करना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी आर एंडिंग दिस.